Okay, good morning, everyone. Can you see this board? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt from any of the class? So I think we have discussed change of mass with respect to velocity. ये discuss कर चुके हैं क्या हम? Yes, sir. So if mass changes with velocity, what about energy then? Because energy is function of, let us say, kinetic energy. So what is kinetic energy? We usually write it as half mv square, right? And that is, you can say it's a correct formula as long as you assume that the velocity of particle is much less than the speed of light. But if velocity is of the order of speed of light, let us say c by 2 or something, can we still use the same formula? I mean, can we still say that the kinetic energy of the particle is this much? Or यदि No, ये sir. No, sir. No, sir. and why can't we say this? I mean, why can't we say that this is the kinetic energy? Because this mass, Because mass is also changed. right? That's also Let yes, us sir. let us redrive what is the exact form of kinetic energy. So before we go to this high speed limit, let us redrive this half mv square formula. जो हम कहते हैं कि एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, ये फॉर्मूला कहाँ से मिला हमें? So consider a simple case that we have some object and this is some person S, and according to this person, this object is not moving. Okay, so initial velocity is 0 and then we applied some force on it. इस पर कोई force लगाया गया and because of this force its velocity increases and after some time or after traveling some distance it has got some velocity v. Okay, so there is zero kinetic energy before and after applying some force it has got some kinetic energy. Okay, so how do we add energy to this particle? इस particle में हमने kinetic energy कैसे add करी है? By applying some force or by doing some work on this object. So if we want to know how much kinetic energy we have given to this particle, we just need to calculate the work we have done on this object. हमने कितना kinetic energy दिया? That is equal to work done on the object, right? कितना work done है? We applied some force. कुछ force हमने apply किया था. Let us say everything in one dimension, so I am not using any vector sign, into some displacement from some 0 to some final displacement is. Let us say after traveling h distance, I mean as long as particle travel h distance, we applied a force and then we release the force. उसके बाद हमने force हटा दिया. So this is the force, this is the distance, and if we integrate it over full distance, this is the work we have done, or this is the kinetic energy we have given to the particle. ये कितना होगा? So force is rate of change of momentum into some distance traveled, 0 to this distance. What is dp over dt? So p is mv, or dp over dt is. So if we assume that mass is constant, यदि हम mass को constant मानते हैं, then it is as simple as m dv over dt. So let me write that number here, m dv over dt
into ds. We can write the same thing as m ds over dt dv. Okay. Only difference is now we have limits of velocity. अब जो limit of velocity की लगेगी. So initial velocity was 0, final velocity was v. M ds over dt is obviously v dv. Velocity 0 to v. And if we integrate this thing, we get half m v square. So this is the formula for kinetic energy. Nothing is surprising here. But here we have taken one assumption. वो assumption क्या था? Mass is constant. If we assume that mass is not constant, then let us see what we get. देखते हैं फिर क्या मिलता है. So this is the formula when m is equal to constant. If m is also a variable, so f ds dp over dt ds, this is d over dt of mass times velocity ds. Now let us take derivative. So m out, derivative of velocity, plus now v out, derivative of mass times ds. Or I can also write m ds over dt dv plus b ds over dt dm. Or this is equal to m ds over dt is velocity, b ds over dt is again velocity, v square d. Now we can't proceed anymore from here. Can we further simplify this? So we are assuming that mass is changing. So let us see how mass change with velocity. जो mass के change होने का formula है, उसको इसमें implement करते हैं so that we can further simplify this thing. So how does mass change? Mass change according to this formula. So m naught is the mass when object was not moving. M is the mass when object was moving with this velocity. Let us rewrite this formula. So m square 1 minus b square upon c square becomes m naught square, right? Or m square c square minus all right. Let us take derivative of this. इस equation का derivative लेते हैं, the complete derivative. So derivative of mass 2m dm, and there is c square also. C square is a constant. So let me write it like 2m c square dm. Derivative of m square b square. So first m square as it is. Derivative of b square is 2v dv. Now b square as it is. Derivative of mass is 2m dm. Right hand side, m naught is a constant, c is a constant, this whole thing is constant, so simply 0. So what we get from here? 2m c square dm, 2m b square dv, or let me say equals to 2b square m dm. Okay, 2 cancels, m cancelled, right?
This is 2m Square. 2m square in b. You can see m plus. I speak with your mind. I speak with your mind. साउंड अच्छी नहीं आ रही सर. Your voice. Your voice is not clear. C square dm is this becomes mb dv, okay, and here we have v square dm. mb dv plus b square dm is c square dm. हमें क्या चाहिए? mb dv plus b square dm. सेम क्वांटिटी है. यस सर. So let me write it to c square dm. The limit will be of mass now. Initial case, particle was not moving. When particle was not moving, mass was m naught. Final case, particle has velocity v, and at that time, mass was m. So how much is the kinetic energy? C square is a constant. So this is the kinetic energy. Means this formula and this formula are same. ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं. If b is much less than c, यदि velocity काफी कम है, so m minus m naught c square and half mb square give you the same result. But if b is c, this is the kinetic energy. Then what is this? ये क्या है फिर जो आपने सुना है? सर m is constant तब. No. It is change in mass, delta m. See, this is kinetic energy. There is no dispute over it. Now let me redefine this whole concept. इस पूरे concept को फिर से define करते हैं. Sir, Yes. sir, here m minus m naught is a negative real quantity, so Ke will come negative. No, m is always more than m naught. If you see this formula here, m is greater than m naught. Okay. So m minus m naught is positive. This is a positive number. Okay, sir. Okay. Now let me redefine this whole concept. So what we were saying initially, that we have some particle which was not moving. Then we have done some work on it. इस पे हमने कुछ work किया, and due to that work, it is now moving with some velocity. Okay. So whatever is the work, that goes into kinetic energy. हमने इसमें कुछ kinetic energy add करी, and due to that kinetic energy, this is its final situation. So what is the role of kinetic energy? Kinetic energy का क्या role है? इसकी इनिशियल कुछ स्टेट थी, उसमें इतना ऐड हो गया, एंड दिस इज द फाइनल स्टेज. लेट मी से दैट इट हैज सम इनिशियल एनर्जी. मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कुछ इनिशियल एनर्जी थी, एंड दैट एनर्जी वाज दिस मच. ओके. व्हाट इज m naught? m naught इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज नॉट मूविंग. इस टाइम इसमें कितनी एनर्जी है? E is equal to mc square. What is m? M is the mass of the object when it is moving. Okay. How much is the difference? कितना difference इन दोनों energies में? m minus m naught c square. ये difference कहाँ से आया? This much energy we provided to the particle through work और kinetic energy. इतना हमने energy अलग से provide कराया है.
So in that sense, you can say that this is the energy of the object. Okay. So if particle is moving, that particle have this much energy. If particle does not move, it has this much energy. Okay. So this is the energy of the object all the time. उसका जो भी state है, उस time का जो भी mass है, just calculate that mass, put that here. That is the energy inside that particle at that moment. उस moment पे उस object में इतना energy है. If you take out the energy, यदि आप energy में से बाहर ले लेंगे, mass will reduce accordingly. If you give energy to the particle, यदि आप energy particle को देंगे, the mass will increase accordingly. Okay. So m minus m naught c square is the change in energy, which is kinetic energy. Mc square is the energy in the object at any instant of time. So mass कैसे बढ़ा? It does not matter. बस it is the mass. This much energy is there in the object. Is it clear now? Now let me establish one more connection of energy with momentum of particle. So energy is this mc square. Momentum simple है m into b. क्या कनेक्शन होता है दोनों में? Sir, Yes. sir, that means this E naught equal to M naught and C square. This is an inherent property just due to the mass of the object, not related to its velocity at all. Yes, you can say that the all massive particle have some energy associated to it. Even if they are not moving, they have some energy with them. Okay, sir. It is purely because of their mass only. Right, right. So it's Okay. like a kind of equivalence. You can always map mass to some energy content. Okay. So whenever you are giving any velocity to the particle, you can assume that you are changing its mass. So this much energy is always there in the object. So electron always have some energy, even if it is not moving. यदि हम move नहीं कर रहा है, तब भी इसमें कुछ energy content है. You can utilize that energy. वो आप चाहे तो उससे ले भी सकते हैं. This is the reason that when you destroy a particle, आप एक stationary particle को जब destroy करते हैं, you get some energy out of it. उसमें से कुछ energy आप उसमें से receive कर पाते हैं. Okay. Okay, sir. Okay. Now we can set some connection. बहुत मुश्किल नहीं है. All we need to know, how does mass change with momentum or velocity? Mass momentum के साथ कैसे, velocity या momentum के साथ कैसे change करता है, वो हमको समझना है. So we will use this formula. ये formula connect करेगा. Let me rewrite. So then in above situation, kinetic energy and total energy are different. Means kinetic energy is half mv square and E is mc square, or both are same. No. Total energy is जो ऑब्जेक्ट में पहले से था प्लस जो आपने अलग से दिया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी. अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, मान लेते हैं सिंपल केस. सो टोटल एनर्जी पार्टिकल में क्या होगा, जो पहले से थी उसमें m नॉट c स्क्वायर प्लस आपने जो दिया. ओके. तो जो आपने दिया that has gone into changing the mass of the object. आप ये मान सकते हैं कि जो एनर्जी आपने दी वो मास को इंक्रीज करने में खर्च हो गई. सो द टोटल एनर्जी नाउ अपीयर्स लाइक दिस mc स्क्वायर. सो इसके दो पार्ट है. वन इज m नॉट c स्क्वायर, इसमें एक कंपोनेंट तो m नॉट c स्क्वायर है जो पहले से था इसके पास. दूसरा जो आपने दिया, आपने कितना दिया, दिस मच, राइट. ये आपने कैसे दिया, द फिजिकल प्रोसेस बिहाइंड दिस काइनेटिक एनर्जीज. आपने कुछ वर्क किया ऑब्जेक्ट पर. okay? उस वर्क ने क्या किया, उस वर्क ने वेलोसिटी इंक्रीज की है पार्टिकल की.
सो इधर यू एज्यूम दैट वेलोसिटी इंक्रीजेज, और ये भी आप उल्टा भी एज्यूम कर सकते हैं कि उस वजह से मास चेंज हो गया एंड देयरफॉर फाइनल एनर्जी इज दिस मच. सो इट इज ए डिफरेंट वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग. उसी स्टेटमेंट को कहने का दूसरा तरीका है. बट इन रिजिड सेंस ये स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होगा दैट m माइनस m नॉट इज द काइनेटिक एनर्जी. इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं. काइनेटिक एनर्जी हमेशा इतना ही रहेगा. ओके, टोटल एनर्जी इज mc स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी की बात अभी नहीं कर रहे. पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वो और इसमें ऐड हो जाएगी. So let me rewrite this thing again. M square c square minus m square b square is equal to m naught square c square. यही आना चाहिए था. हमने ऊपर लिखा ऑलरेडी. Yes. Okay. Let us fit both the numbers here. mc square fit करने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई विथ सी स्क्वायर. सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस बिकम्स m स्क्वायर c4. दिस बिकम्स m स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड दिस बिकम्स m नॉट स्क्वायर c4. m स्क्वायर c4 क्या है? ये टोटल एनर्जी स्क्वायर. ये क्या है? जस्ट वन मैथमेटिकल इक्वेशन. देखा जाए तो सिर्फ एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है जो एनर्जी मोमेंटम को कनेक्ट करती है. बट इट हैज सम फिजिकल मीनिंग आल्सो. क्या वो है? व्हाट इज पी? पी क्या है? इट इज एक्चुअली मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है? समथिंग विच डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर. कौन इसको चेक कर रहा है? इफ यू चेंज द ऑब्जर्वर then this will also change, or in simple word this quantity depend on frame or depends on observer, right? What about E? mc square. m क्या है? dynamic mass, means it is a function of velocity. Velocity is a property which depends on observer. कोई दूसरा ऑब्जर्वर देखेगा उसका वेलोसिटी कुछ और दिखेगा. अकॉर्डिंगली द एनर्जी विल बी डिफरेंट. सो दिस क्वांटिटी आल्सो चेंज विद ऑब्जर्वर. मेरे हिसाब से एनर्जी ई है, आपके हिसाब से एनर्जी ई प्राइम हो सकती है. सर. राइट. 1 मिनट. सर ये m नॉट स्क्वायर के साथ c की पावर 4 कैसे आया सर? आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग c स्क्वायर एवरीवेयर. ओके. So I multiply c square in all three components. Okay. So this becomes e square, this p square c square. ये जो आना है सो आई गया. What about right side? Right side में क्या ऐसा कुछ है जो ऑब्जर्वर के हिसाब से चेंज होगा? No sir, constant. This is always constant. चाहे मैं देखूं या आप देखें, सभी के लिए नंबर कांस्टेंट है. Or in other words, according to me, यदि पार्टिकल का एनर्जी E है और मोमेंटम P है, एंड फॉर यू लेट अस से आपके अकॉर्डिंग एनर्जी E प्राइम है एंड मोमेंटम P प्राइम है, देन मेरे लिए भी ये नंबर क्या नंबर है? E स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर. जो भी नंबर ही मेरे लिए आएगा, आपके केस में भी यही नंबर आएगा. Although your numbers are different, आपका एनर्जी और मोमेंटम अलग है, बट ये दोनों नंबर सेम होंगे. ओके. ओके, किसके बराबर होंगे वो भी आप जानते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इनवेरियंस. इसको हम कहते हैं इनवेरियंस. इनवेरियंस मीन्स समथिंग विच डज नॉट चेंज. So velocity is not invariant,
वो चेंज हो जाती है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग. टाइम इज नॉट इनवेरिएंट, लेंथ इज नॉट इनवेरिएंट, मास इज नॉट इनवेरिएंट, एनर्जी इज नॉट इनवेरिएंट. सो इनवेरिएंट क्या है? ओनली टू थिंग्स. सिर्फ दो ही स्टेटमेंट इनवेरिएंट है. फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट. मैं देखूं या आप देखें, एक ही दिखेगा. दूसरा, दिस स्ट्रेंज नंबर. मैं देखूं या आप देखें, दोनों के लिए एक ही रहेगा. ओके. I'm not. Yes, and that number is equal to, वो भी ऐसा नहीं कि आपको हमें कुछ अलग मिलेगा, वो इसके बराबर आएगा. So these two things are invariant in relativity. Invariant Sir, I'm not is invariant. Sorry? I'm not. Yes, you can say M naught is also. Actually, you can say that M naught is also invariant, but M naught is restricted by something. M naught में आपने restriction लगा दिया है. That particle does not move. Okay. So let us say ये एक object A है. Okay. According to me, this object is not moving. मेरे according ये object move नहीं कर रहा है. According to me, the mass is M naught. यदि आपके according ये object move कर रहा है, then you will not consider this object. आप कोई ऐसा object देखेंगे जो आपके according move ना कर रहा हो, और you will stop this object according to you. या आप इसको रोकेंगे अपने हिसाब से. उस टाइम वो मेरे लिए मूव कर रहा होगा. So if you apply such hardcore conditions, then everything is invariant. फिर तो वो trivial case हो गया. These are non-trivial case. Same experiment पर हम दोनों के डेटा एक ही आने हैं. Okay. So for the same object, एक ही object, एक ही experiment की बात हो रही है. उसमें ये quantity जो मुझे मिलेगी वही आपको मिलेगी. ये quantity जो मुझे मिलेगी वही आपको मिलेगी. You can say I'm not, but then इस ऑब्जेक्ट को पहले मुझे अपने हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा. आई हैव टू स्टॉप इट. मुझे कहना पड़ेगा कि हाँ ये स्टॉप हो गया. देन आई विल मेजर. उस टाइम आपका डेटा एम नॉट नहीं आएगा. यू विल रिसीव सम अदर डेटा. यू विल हैव टू स्टॉप इट एज पर योर कन्वीनियंस. उस टाइम आपको एम नॉट मिलेगा, मुझे एम नॉट नहीं मिलेगा. सो वी आर परटर्बिंग द एक्सपेरिमेंट टू गेट आवर डेटा. उस सेंस में हम इनको इनवेरिएंट में काउंट नहीं करते हैं. बट ऑल दिस थिंग्स वी आर नॉट परटर्बिंग एक्सपेरिमेंट. हम एक्सपेरिमेंट में कोई परटर्बेशन नहीं कर रहे हैं. आप अपना डेटा कलेक्ट कीजिए, मैं अपना डेटा कलेक्ट करूंगा. आपको ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा. मुझे ई प्राइम स्क्वायर माइनस पी प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा. बट व्हेन वी विल डू कैलकुलेशंस, जब ये पूरा नंबर कैलकुलेट सर पर जैसे अर्थ पे दो लोग करेंगे तो दोनों को तो रेसिपी दिखेगा. इट मींस दैट बोथ विल गेट द सेम ई, बोथ विल गेट द सेम पी. उस केस में यदि मुझे भी ये मिल रहा है तो आपको भी यही मिल रहा है. दैट्स अ ट्रिवियल केस. वो तो ट्रिवियल केस हो गया. Okay. So in that case, you can assume, यदि आप सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करते हैं, आप कह सकते हैं एम नॉट इज इनवेरिएंट. बट वो एक ट्रिवियल इनवेरिएंस है कि आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है. these are नॉन ट्रिवियल इनवेरिएंट. आप कोई भी एक्सपेरिमेंट उठा लाइए, मैं उसमें छेड़छाड़ करने को नहीं कहूंगा. बट स्टिल आई विल गेट द सेम आंसर. मुझे वही आंसर मिलेगा जो आपको मिलता है. So in that way you can predict n numbers of invariant. आप कितने भी invariant ला सकते हैं by imposing restrictions. Restrictions ना लगाए तब जो quantity invariant आती है हम उनकी बात कर रहे हैं. So this is the end of relativity here. And I'm not going to talk about any mathematics now. Just let me know which part is conceptually not clear to you. टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा क्या है जिसका आपको कंसेप्चुअल में कोई डाउट है? मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी. लाइक इज देयर एनी डिफिकल्टी? यस, I have a doubt. यस. Will we feel the increase in mass when we are traveling at very high speed? Yes. Why do you think that you will not feel? Because sir,
हम लोग तो अपने फ्रेम में तो रेस्ट में है ना, तो हमारा मास हम लोगों को कैसे इंक्रीज लगेगा? So you are not moving according to you, but you are moving according to me. So Yes, according sir. to me, your mass should increase. According to you, your So what do you mean with how do we feel? क्या आप अपने मास को फील करते हैं? I mean, No, how do sir. you quantify the word feeling? ठीक है, आप the human body is a complex thing, but if you want to make it simple, how do you quantify that you feel? I mean, can you convert it to some number? No, sir. We are only feeling normal force exerting by Earth, not our mass. See, so I mean, maybe you are also correct, maybe I am wrong, but see, unless we make it a workable model, we cannot answer it precisely. Yes, you can convert it to force. I mean, you can measure force by using some spring or something like that. But there is a problem with force. हमने एक चीज जो डिस्कस नहीं करी वो करेंगे भी नहीं. Relativity is of two types. One is special, which we are discussing. Other is general. क्या डिफरेंस है दोनों में? This is about inertial frames or the frames, or I mean there is some constant value. The relative velocity is constant. जो मूवमेंट है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ. और सिंपल वर्ड्स, यहाँ एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स नहीं है. सो देयर इज नोथिंग लाइक फोर्स. हम फोर्स लगाने, हम ऐसा कोई केस डील नहीं कर रहे हैं दैट देयर इज अ ऑब्जेक्ट, वी अप्लाई सम फोर्स, उसकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होती है. जनरल थ्योरी इज देयर इज नो एजम्पशन, देयर आर एक्सेलरेशंस. यहाँ एक्सेलरेटिंग पार्टिकल भी डिस्कस किए जाते हैं. एंड फॉर सम रीजन general theory is much more complicated, much more complex than the special theory. Okay, so जो आपका सवाल है फोर्स वाला वो इसमें आता है. और ये पार्ट इतना सिंपल नहीं जितना आप स्पेशल थ्योरी को पढ़ रहे हैं. देयर आर सम अदर complications also. So I mean, although I understand that you have many doubts regarding the general theory part, but restrict yourself to the half of the knowledge. अभी आप सिर्फ यूनिवर्स के इस साइड में रहिए, इधर को मत आइए. Okay. सर यस. सर आपने क्वेश्चन पूछा था पिछले क्लास में कि सर जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है वो होता है या नहीं होता है. यस, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर पढ़ रहे थे उसमें लिखा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी. सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप ही ने पूछा कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है या नहीं होता है, आप जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है, राइट? वास्तव Yes, में sir. क्या होता है? यस सर. हाउ डू यू नो व्हाट इज रियलिटी? आप कैसे रियलिटी या कैसे सच्चाई को पहचानते हैं? सर मेजर करेंगे उसकी वैल्यू. See, जो जो हम आप देखेंगे See, या what किसी से you कंपेयर करेंगे जो पता हो. yes, जो आप देख सकते हैं वो सच्चाई है, जो आप नहीं देख सकते उसको आप सच नहीं मानते, राइट? एज सिंपल एज दैट. सो यू मेजर द थिंग्स, यू डू सम मेजरमेंट, और उससे आपको पता चलता है यस दिस इज द रियलिटी हियर. अबाउट लेंथ आपने मेजर किया, देयर इज नो मशीन एरर, मशीन में कोई एरर नहीं है, मशीन्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन, एंड यू गेट दैट लेंथ इज 1 मीटर. आपको पता चला लेंथ 1 मीटर है. योर फ्रेंड मेजर दैट लेंथ इज ओनली 0.8 मीटर. उसके एपरेटस में कोई गलती नहीं है. ओके, so your reality is that length is 1 meter, his reality is that length is 0.8 meter. गलती कहाँ हो रही है? Your hardcore assumptions that both of you should get the same result. जो आप एक मान के चलते हैं कि हम दोनों को एक ही रिजल्ट मिलना चाहिए था, वो आपका कंसेप्ट गलत है. वेलोसिटी जब डिफरेंट आती है तब तो आप लोग नहीं लड़ते हैं.
वहां क्यों मान लेते हैं कि हाँ आपकी ठीक है, दूसरी आ रही होगी? जब एक ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दो लोग मेजर करते हैं एंड देयर इज ए डिफरेंस, तब आप कहते हैं कि नहीं, दोनों को एक ही वेलोसिटी मिलनी चाहिए। ये कोई ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी इज रिलेटिव। so there is no fight over the fact that we both are getting different velocity। तब तो आप नहीं पूछते कि सही वेलोसिटी कौन सी है, u है या u प्राइम है, राइट? आप कहते हैं हाँ ठीक है, डिफरेंस आ रहा होगा एंड यू नो व्हाई वी आर गेटिंग दिस डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज हम जो दो लोग मेजर कर रहे हैं वो लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, हम दोनों में रिलेटिव मूवमेंट है, इसलिए हमको अलग अलग डेटा मिल रहा है। सेम थिंग अप्लाइज टू अदर थिंग्स आल्सो। बता सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की रियल वेलोसिटी क्या थी, u या u प्राइम, कौन सी सही है? s ने कहा u है, s प्राइम ने कहा u प्राइम है, बताइए सही कौन सा है? दोनों सही है। सेम थिंग अप्लाइज टू लेंथ। ये चीज लेंथ के लिए भी ट्रू है, यही चीज टाइम के लिए भी ट्रू है, यही चीज मास के लिए भी ट्रू है, यही चीज एनर्जी के लिए भी ट्रू है। ओके, सो गलती कहां पर है? गलती यहाँ पर जब आपने कहा कि लेंथ मुझे सेम ही मिलना चाहिए था। नो, क्यों मिलेगा सेम? यस सर हम लोग एक फ्रेम में रख के दूसरे फ्रेम का लेंथ मेजर कैसे करेंगे? कोई भी दूसरे फ्रेम में टेक्निक, कोई ऑब्जेक्ट रखा है दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कैसे मेजर करते हैं। तो सर मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा है रॉड दूसरे फ्रेम में और वो मूव कर रहा होगा, इसलिए उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आएगा, तो See, इसलिए स्केल मैंने उसमें हम लेके जाएंगे। ठीक है, उसी वजह से मैंने आपको एक सीट दिया था। आपको दिया है क्या? दिया है शायद। ए सीट ऑफ 5 क्वेश्चंस जिसमें एक बल्ब है, 2 मिरर से हिट करके लाइट वापस आ रही है, राइट? आप फ्लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मत लगाइए, सिंपल जो भी आप +2 का गुणा भाग करना जानते हैं उसी से चेक कीजिए कि एलिस और बॉब को क्या लेंथ क्या टाइम मेजरमेंट आ रहे हैं। यू विल सी दैट दे आर गेटिंग डिफरेंट टाइम्स। आपने देखा भी, दोनों को अलग अलग टाइम देखने को मिलता है। यस सर। क्या उन्होंने कोई गलती करी थी मेजर करने में? नो सर। जो फर्स्ट केस था, एलिस ने कहा लाइट इज गोइंग अप, लाइट ऊपर मिरर से हिट करी, लौट के नीचे आई एंड इट टुक 20 सेकंड टाइम। एलिस का ऑब्जर्वेशन गलत है क्या? उसने कोई मिस्टेक किया कहीं? नो सर। नो सर। बॉब ने कहा लाइट इज गोइंग लाइक दिस, देन इट हिट बैक एंड गोज हियर। क्या बॉब को कुछ गलत दिखाई दे रहा है? नो सर। क्या कैलकुलेशन में कोई गलती है? नो। एंड अकॉर्डिंग टू बॉब कितना टाइम लगा? 25 सेकंड। दैट्स द टाइम रिलेशन। सो हाउ डू यू मेजर? दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। आप कोई सा भी मशीन, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट, कोई सा भी ट्रिक लगाइए। सर वो एसिंक्रोनाइजेशन वाला फिर से बताना सर, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है ना सेकंड प्रॉब्लम में इसमें। Are you guys free on Tuesday 5 to 6? I mean, अच्छा आपका J2 का ट्यूटोरियल होता है? नो फ्री सर। Okay, so let me, it will take some time. Okay, let me try. इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं आज पूरा करने की। सर क्या पूरा करना है? Your doubts about synchronization and tutorial 3. So we have got one difference here. यहाँ पे एक dispute आया था। वो dispute क्या था? Alice says, Alice ने कहा time is 20 second, path is this. According to Bob, time is 25 second, path is this. This is problem 1. ये problem 1 है हमारा। Okay? Problem 2 पर आइए। Problem 2 क्या है?
सब कुछ सेम है. Only thing, the mirror is now in horizontal direction. एलिस का डेटा क्या होगा? What is the path? क्या पाथ होगा एलिस के अकॉर्डिंग? Light is going like horizontally. It travel for 10 seconds, then goes back to the source. कितना टाइम लगा? 20 seconds. बॉब के अकॉर्डिंग बताइए क्या पाथ होगा? Light is going like this and then it will come back. क्या सेम पाथ ट्रेवल करेगा लाइट? आई मीन No, क्या sir. सेम लेंथ ट्रेवल करेगा? No, sir. So let me No, say sir. No, sir. इसको L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए. कितना है L1 आपके अकॉर्डिंग? How much is L1? 2L2. इसको थोड़ा केयरफुली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. So what is happening? 16C. यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे मिरर है. ओके, ये डिस्टेंस कितना था? 10C. बट ये लाइट पल्स यहाँ से लॉन्च हो चुका है. लेट अस से t is equal to 0. जब बॉब ने मेजरमेंट शुरू किया, लाइट पल्स यहाँ से जस्ट लॉन्च हुआ था. बट लाइट भी चल रही है तो मिरर भी आगे को बढ़ रहा है. मिरर की स्पीड से आगे को बढ़ रहा है 0.6c से. ये लाइट पल्स की स्पीड से आगे बढ़ रही है c से. ऑब्वियसली लाइट पल्स हैज हायर स्पीड, सो कहीं ना कहीं तो हिट करेगी. लेट अस से दे बोथ हिट हियर. दोनों यहाँ पे आके हिट करते हैं. मान लेते हैं टाइम लगता है t. लाइट पल्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? c इंटू टी, राइट. मिरर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0.6c इंटू टी. ये नंबर कितना होना चाहिए? 10c के बराबर, राइट. सो कितना टाइम लगा लाइट पल्स को हिट करने में मिरर को? 10c डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.6, 0.4c. 25. It took 25 seconds. So 25 seconds तो लगे लाइट को मिरर को हिट करने में. Now light is going back. लाइट अब पीछे को आ रही है. सर 10C कैसे होगा? 10c क्यों हुआ है? t is equal to 0 पर क्या सिचुएशन था बॉब के अकॉर्डिंग? ये लाइट सोर्स है, ये मिरर है. मिरर मान लीजिए यहाँ पर है. इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए बॉब ने कहा 10c था, या कुछ और भी हो सकता है. एट t is equal to 0, बॉब ने क्या देखा होगा? ए लाइट पल्स इज जस्ट लॉन्च्ड फ्रॉम हियर. एक लाइट पल्स यहाँ से एमिट हुआ है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स मिरर. मिरर की तरफ मूव कर रहा है. और क्या दिखाई दे रहा है बॉब को? मिरर तो मूव कर ही रहा है अपनी स्पीड से. एंड द सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड मिरर डज नॉट चेंज. दोनों ही मूव कर रहे हैं. सोर्स भी मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है. बट इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स है. ओके, नाउ दिस पल्स इज मूविंग विद स्पीड c. पल्स तो c स्पीड से आगे बढ़ रहा है. दैट मिरर इज मूविंग विद स्पीड 0.6c. सो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं तो हिट करेंगे क्योंकि मिरर की स्पीड कम है, लाइट पल्स की ज्यादा है. लेट अस से दे हिट हियर. इन्होंने यहाँ पे हिट किया. आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके हिट हुआ. दिस इज लाइक एक पर्सन रनिंग यहाँ से शुरू करता है बट वो स्लो रन कर रहा है. एक पर्सन पीछे से रनिंग शुरू करता है, पीछे से है बट सिंस ही इज फास्ट है ना, उसकी स्पीड ज्यादा है. दे विल मीट समवेयर. कहीं ना कहीं तो फिर भी मिलेंगे, भले इसने पीछे से स्टार्टिंग करी है. सो दे हिट द लाइट हिट द मिरर इन 25 सेकेंड. ठीक है, कोई बात नहीं. पीछे को आइए. अब लाइट बाय द वे 10/0.4, इट इज 25. यस. नाउ लाइट इज गोइंग बैक. अब लाइट पीछे को आ रही है.
बट सोर्स तो आगे कोई बढ़ रहा है अभी भी, यस सर। राइट? कितने टाइम में सोर्स को मिल जाएगा ये जा करके? 6.25। Just make plus, you will get 1.6 here, so 10 upon 1.6, right? कितना हुआ ये? 6.25। 6.25 6.25 6.25, ओके। So 25 सेकंड्स लगा लाइट को आगे जाने में और 6.25 लगा लाइट को पीछे आने में। टोटल ट्रेवल टाइम कितना हुआ लाइट का? एलिस के अकॉर्डिंग 20 था, बॉब के अकॉर्डिंग 26.25 सेकंड। और पाथ क्या था? ये, ओके। एलिस के अकॉर्डिंग बोथ द लाइट्स आर टेकिंग सेम टाइम। एलिस के अकॉर्डिंग तो कोई डिस्प्यूट कहीं दिखता नहीं है। बॉब के अकॉर्डिंग जो लाइट वर्टिकल डायरेक्शन में थी उसने 25 सेकंड लिए, बट जो लाइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी उसने इतना टाइम लिया। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि दे आर गेटिंग डिफरेंट टाइम, ठीक है। एलिस को 20, बॉब का 25, कोई बात नहीं। क्या ये भी एक्सेप्टेबल है? एलिस कह रही है ठीक है 20 जो भी था, बट इन हर केस बोथ द नंबर्स आर सेम, दोनों नंबर सेम है, 20 पर ही है। बट बॉब के अकॉर्डिंग दोनों नंबर डिफरेंट है। सो पहले तो इसी डिस्प्यूट को सेटल कीजिए। क्या बॉब को दोनों नंबर डिफरेंट मिलने चाहिए? यस सर। सर यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा वोटिंग करते हैं। How many of you believe that there is no problem if Bob get different numbers? कितने लोगों का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं थी बॉब को अलग अलग टाइमिंग मिलती है? कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके ओके, पुट डाउन हैंड्स। कितने लोगों को दिक्कत है अलग अलग टाइमिंग मिलने से? ओके, पुट डाउन हैंड्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैंने ये किया। सो एलिस की स्पेस सेफ है। यहाँ पे सोर्स है, यहाँ मिरर है, ओके। जहां पे सोर्स है एट द सेम पॉइंट आई हैव पुट ए मशीन। मैंने एक मशीन रखी है, हैंडमेड मशीन है। क्या काम है मशीन का? So this is the machine. This is one input. ये पहला इनपुट है। ये क्या करता है? It receive light from the mirror. जो भी मिरर से लाइट लौट के आ रही है उसको रिसीव करेगा। This is input 2. ये input 2 है। What is the job of this input? It receive the light coming from horizontal mirror. Then they have a photocell. ये दोनों एक फोटोसेल से जुड़े हुए हैं। उनका क्या काम है? They convert this light pulse to current. उन्होंने इस लाइट पल्स को करंट में कन्वर्ट किया। एंड देन दिस करंट इज सेंट टू ए एंड गेट। ये करंट एक एंड गेट में चला गया। एंड गेट का काम क्या है? इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज ऑफ, यदि किसी एक इनपुट में भी करंट नहीं होगा, आउटपुट में करंट नहीं आएगा। सो आउटपुट इज वन ओनली व्हेन बोथ द इनपुट आर वन। आउटपुट तभी आएगा जब दोनों इनपुट में एक साथ लाइट आएगी। एंड लेट अस से दिस आउटपुट इज कनेक्टेड टू ए बल्ब। इसको हमने एक बल्ब से जोड़ दिया है। क्वेश्चन इज, क्या एलिस के अकॉर्डिंग ये बल्ब जलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. सो एलिस सेज यस। बॉब के अकॉर्डिंग नहीं जलेगा। नो सर। नाउ एज फार एज बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, इट हैज नथिंग टू डू विद मेजरमेंट। क्या उसका तो मेजरमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है? नो सर। क्या ऐसा हो सकता है कि एक को बल्ब जलता हुआ दिखे और दूसरे को ना दिखे? नो सर। नो सर। No, sir. सो फिर से वोटिंग कराया जाए, किसको दिक्कत है सेम रिजल्ट ना आने से?
Now see what I'm trying to say. 20 या 25 है वो एक दूसरी बात है. मान लीजिए यदि बॉब को 25 भी आता है, मान लीजिए कि ये डेटा गलत है, इट इज 25. At least there is no logical problem now. Dispute अभी भी है. What is the correct time? But we will never get into any logical inconsistencies. कभी भी logical inconsistencies तो नहीं होंगी. वो हमेशा लड़ते रहेंगे कि कितनी देर के बाद पल्स लौट करके आई. बट वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर ले, they will predict the same outcome. यदि एलिस के अकॉर्डिंग बल्ब चलेगा तो बॉब के अकॉर्डिंग भी चलेगा. ओके, बट यदि ये टाइम डिफरेंस है, देन देयर आर लॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनका मेजरमेंट से भी कोई कनेक्शन नहीं है. Right? So one thing is clear that Bob should get the same time. Bob को same time मिलना चाहिए. कितना मिलेगा वो बात की बात है. So सवाल ये है इसमें से कौन सा टाइम गलत है. एक तो गलत हुआ, या तो ये गलत है या ये गलत है. बता सकते हैं कौन सा गलत है. सेकंड. और यदि सेकंड गलत है तो गलती का कर लिया आपने. सर वो मूव कर रहा है ना सर. अब फिर से इसी कैलकुलेशन को कीजिए बिना किसी आर्गुमेंट के. मान लीजिए दिस लेंथ इज नॉट L1, जो बॉब ने कहा था कि मिरर और सोर्स के बीच का लेंथ 10c है. डू नॉट एज्यूम इट 10c. इसको 10c ना मान करके आप इतना मानिए 10c स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.6 स्क्वायर मीन्स 8c. 8c मान के देखिए क्या आंसर आता है आपका. एक बार के लिए मान लीजिए, अभी बहस नहीं करते हैं इस पर. सो पहले आपको क्या मिल रहा था 10/0.4, राइट. ये मिला था पहले. अब आपको मिलेगा 8/0.4. कितना हुआ ये 20. और ये आपको मिलेगा 8/1.6. ये कितना हुआ 5. 5. हाँ, टोटल टाइम 25 सेकंड. अब कम से कम या तो दोनों के लिए बल्ब जलेगा या दोनों के लिए नहीं जलेगा, राइट. सो इट इज ट्रू दैट जो बॉब को लेंथ दिखाई देगी वो 10c नहीं दिखाई देगी. बॉब ने कैसे लेंथ मेजर करी हम उसमें नहीं गए हैं, बट वन थिंग इज क्लियर, यदि बॉब को कोई और लेंथ दिखाई देगी देन देयर इज नो एंड टू लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज. सो बॉब के अकॉर्डिंग ये लेंथ 8c है, राइट. और बॉब के अकॉर्डिंग मूविंग लेंथ इज कॉन्ट्रैक्टेड. बॉब को ये लेंथ मूविंग दिख रहा था इसलिए उसको ये लेंथ दिखाई दी. So length contraction happens. ऐसा नहीं है कि वो कुछ मशीन का एरर है. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज इफेक्ट नहीं है, वो तो हमारी कैलकुलेशन की गलती थी. हमने मान लिया था कि बॉब को भी इतनी लेंथ दिखाई दे रही है, कोई रीजन तो था नहीं हमारे पास. तो इसको इरेज करते हैं. Now what is the dispute between 20 and 25? This is time dilation. ये टाइम डायलेशन है. आप चेक भी कर सकते हैं. 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6 स्क्वायर, ये 25 ही आएगा. ओके. नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 4. अब प्रॉब्लम नंबर 4 पर आइए. So 3 we have done. 4. Calculate how much time does Alice record when light pulse goes from source to mirror. सिर्फ आधा ही पाथ हमने चेक किया है. So light emits from the source और mirror तक गया इतना. Alice के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगा 10 सेकेंड. बॉब के अकॉर्डिंग 12.5 सेकेंड. ठीक है. क्या टाइम डायलेशन से कनेक्टेड है? कनेक्टेड है, आप चेक कर सकते हैं. 10 स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.6 स्क्वायर इज 12.5. हॉरिजॉन्टल में चेक करते हैं. लाइट इज गोइंग लाइक दिस, मिरर्स को हिट किया. एलिस के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगा 10 सेकेंड.
बॉब के अकॉर्डिंग अभी निकाला हमने, कितना आया था? 8 अपॉन समथिंग था ना, 8/420 8 अपॉन 0.4 20 आया था, राइट? बॉब के अकॉर्डिंग 20 सेकेंड। क्या ये टाइम डायलेशन से कनेक्टेड है? ऑब्वियसली नहीं, चेक कर लीजिए। 10 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.6 स्क्वायर 20 तो नहीं आता है। अब क्या हो रहा है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी लगा दिया। एसिंक्रोनाइजेशन। synchronized। नाउ देयर आर टू प्रॉब्लम्स, यहाँ दो प्रॉब्लम है। टाइम डायलेशन है, इट इज देयर, अभी भी है। देयर इज एसिंक्रोनाइजेशन आल्सो, एसिंक्रोनाइजेशन भी है। आई हैव ओनली 1 मिनट। सो जस्ट कैलकुलेट दिस नंबर, एक बार जरा ये नंबर भी कैलकुलेट करके देखिए। क्या नंबर है? bx अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कितना डिफरेंस आ रहा है आपका? कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 12.5 माइनस 20, 7.5 का डिफरेंस है आपका। इसको चेक कीजिएगा, ये नंबर 7.5 के बराबर है या नहीं है। ओके, ये नंबर कहां से आया? ये हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से चुरा लिया है, उसका आधा पार्ट हटा लिया है, आधा छोड़ दिया है। ये था लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एक्स का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड मिरर। कितना रखेंगे? दोनों नंबर रख के देखिए, 10c भी रख के देखिए और 8c भी। 10c है लेंथ एलिस के अकॉर्डिंग, 8c है लेंथ बॉब के अकॉर्डिंग। देखिए किस नंबर के साथ आपको 7.5 मिलता है, वो उसी के साथ क्यों मिला, दूसरे के साथ क्यों नहीं मिला। ओके, थोड़ा सा इस पर टाइम लगाइए, रेसनिक का बुक थोड़ा सा पढ़िए इस बारे में। मेक योर ओन स्टोरी, अपना खुद का एक स्टोरी बनाइए। आई विल करेक्ट दैट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, उसको करेक्ट कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक, सो डिड आई आंसर सम ऑफ योर क्वेरीज? कुछ क्लियर हुआ आपको पहले से? Yes, sir। Yes, sir. यस सर। प्लीज सॉल्व 4 and 5 प्रॉब्लम नाउ। प्रॉब्लम नंबर 4, 5 खुद से कीजिए, जो डेटा आता आने दीजिए, उसको देखिए कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे उसका आंसर ला सकते हैं। आपके डिफरेंस आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही आंसर क्या है वी विल Yes, sir। डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके सर ओके सर सर। नेक्स्ट Yes. सर प्रीवियस बार की पीपीटी शेयर कर दीजिए सर। वो मैंने अभी सुबह सुबह किया है, मे बी अब तक तो आपको मिल जाना चाहिए। जस्ट रीचेक इन योर अकाउंट। ओके सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, सर इस क्लास की भी कर देना। थैंक यू सर। ऑलराइट।